Hello student, myself Priyanka Kesi, I am your biology teacher. Today my topic name is peripheral nervous system. In peripheral nervous system we discuss with you are two parts. First is their somatic nervous system and second is their autonomous nervous system. Okay? Now in somatic nervous system two parts are there, cranial and spinal nerves, and autonomic nervous system we discuss with you parasympathetic and sympathetic nervous system. Today topic name is peripheral neural system. In this topic you see it comprises of all the nerves of the body arising from the CNS. देखिए बेटा CNS is there consisting of brain and spinal cord. ठीक है, in previous you know that. तो CNS consists from brain and spinal cord, so it means those nerves arises from the CNS, it means brain and spinal cord. It means those nerves arise from the brain and spinal, that called the peripheral nervous system. Peripheral means is the laterally, it ठीक है, सेंटर में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गया. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं दैट्स आर लेटरली फ्रॉम बोथ साइड. तो दिस वन इज देयर PNS, it means peripheral nervous system. So now next point you see the PNS is further divided into two division. First is their somatic and second is their autonomic neural system. Now in somatic it relay impulse from CNS to the skeletal muscle. It relay impulse, it means जो impulses, जो sensation हमको CNS से skeletal muscles को जाएंगे. ठीक है, तो वो कौन देता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. अब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हैव अ टू नर्व्स आर देयर. वन इज देयर क्रेनियल एंड सेकेंड इज देयर स्पाइनल. तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, देन स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं. तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. दैट्स अ क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स. तो क्रेनियल नर्व्स इट मीन CNS में ब्रेन और स्पाइनल हो गया. तो ये जो नर्व्स जो होंगी वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्केलेटल मसल्स को देंगी. ठीक है, इम्पल्सेस. नाउ ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स. इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब जिन ऑर्गन्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक दैट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स, इट मीन्स लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन. ठीक है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो दैट्स इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स. नाउ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स दैट्स अ विसरल ऑर्गन ऑल्सो नोन एज. ठीक है, तो जो ट्रांसमिट इम्पल्सेस होंगे वो CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो द ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप. First is their sympathetic neural system and second is their parasympathetic neural system. Nerve fibers of PNS are two types. PNS के two nerve fibers है, afferent nerve fibers and efferent. Afferent is there, they transmit impulses from the tissue organ to the CNS. And efferent is there, they transmit regulatory impulse from CNS to the peripheral tissue or organ. In here you see there this one is the CNS. ठीक है, CNS consists of brain and spinal cord. तो it's a center part are there brain and this one is their spinal cord. Now those nerve arises from the brain. It means the brain से देखें जो nerves निकल रही हैं that's called the cranial nerve. Cranial nerve a total number is there 12. ठीक है, तो 12 pairs are there. ठीक. Now next is their spinal cord. So those nerve arises from the spinal cord that is called the spinal nerves. Total number is 31 pairs are there. Okay. Now these nerve are inserted into the skeletal muscles. What is the skeletal muscles? Those muscles are inserted in bones. ठीक है, मतलब जो muscles bones से attach होती हैं उसे हम skeletal muscles कहते हैं. तो ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व की जो मसल्स होती हैं वो जो नर्व होती हैं वो इंसर्ट कहाँ हो रही हैं? मसल्स में, चाहे वो अपर लिम्ब की हो चाहे वो लोअर लिम्ब की हो. ठीक है, तो दैट मीन्स इट मीन्स सोमैटिक जो नर्व है वो अराइजेस कहाँ से है? CNS से.
और ये CNS से अराइज होने के बाद इट मीन्स चाहे वो क्रेनियल हो स्पाइनल हो, ठीक है, ये जो दोनों नर्व्स हैं। देन इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल, ये क्या करते हैं, ये नर्व्स यहाँ से निकल के स्केलेटल मसल्स में इंसर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स इनका जो एक्शन होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो सोमैटिक मीन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दोज नर्व अराइजेज फ्रॉम द CNS एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल्स, तो दिस one is called the somatic nervous system. Now these nerves is further divided into many branch. They consist into the different organs, ठीक है, different organs insert its stomach, kidney, intestine. This one is the involuntary organ. Why are called the involuntary organ? Because those organs are not work according to you बॉडी, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं करते, दे डू द वर्क इन ओन सेल्फ, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्टमक, किडनी, अब जैसे डाइजेशन होता है तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, स्टमक अपना वर्क खुद ही करता है, किडनी अपना वर्क खुद करेगा, इंटेस्टाइन, तो दैट्स कॉल्ड द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड विसरल ऑर्गन, ओके। तो इनसे जो निकलने वाली नर्व्स होती हैं, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो क्रेनियल है, चाहे स्पाइनल जो नर्व्स हैं, वो डायरेक्टली अगर इनसे इन ऑर्गन से आके कनेक्ट होती हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट मीन्स दे ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक स्टमक, किडनी और इंटेस्टाइन, ठीक। तो इन दिस डायग्राम यू सी CNS, PNS एंड ANS. हाउ टू सप्लाई इज देयर, यू सी इन हेयर, ओके। Coordination in plants. In coordination in plants, movements in plant, ठीक है। तो जो coordination, it means coordination, how to define in plants. It means plants can do the movement. तो movement are two types in here, independent of growth or dependent of growth. Now first we discuss with you independent of growth. Independent of growth, see, immediate response to stimulus. Plants use electrical chemical means to convey information from cell to cell. It means immediate response to a stimulus, ठीक है। plants में जो immediate response to the stimulus होता है, then plants uses electrical chemicals. वो क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं बाय द इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्सेस के थ्रू फ्रॉम सेल टू सेल। नाउ बाय एग्जांपल यू सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंजेस देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देन रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। स्टोमेटा में क्या होता है कि जो वाटर के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो होता है स्वेलिंग और श्रिंकिंग की प्रोसेस होती है उसके सेल में। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट्स ऑन टचिंग इट। देखिए नेक्स्ट इज देयर ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, इट मीन्स सपोज आप टच मी नॉट, इसे छुई मुई का प्लांट है, छुई मुई के प्लांट्स अब में अगर उसकी लीव्स को आप टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं खुद तुरंत ही श्रिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट प्लांट। सी द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंजेस देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देन रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। स्टोमेटा में क्या होता है कि जो वाटर के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो होता है स्वेलिंग और श्रिंकिंग की प्रोसेस होती है उसके सेल में। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट्स ऑन टचिंग इट। देखिए नेक्स्ट इज देयर ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, इट मीन्स सपोज आप टच मी नॉट, इसे छुई मुई का प्लांट है, छुई मुई के प्लांट्स अब में अगर उसकी लीव्स को आप टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं खुद तुरंत ही श्रिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट प्लांट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। What is dependent on growth? These movements are tropic movement, that is directional movement in response to stimulation.
So this directional movement are different types in here. Phototrophism. Photo means light and trophism means movement. तो plant can grow towards the source of light. ठीक. Now movement towards light, it causes more growth on the dark side and hence the shoot curvature towards the source of light. This process is known as phototrophism. Now next topic is geotrophism. Geo, it means gravity. Okay. Movement towards oblique away from the gravity. Should get curved upwardly because its growth is promoted of the lower side, and the root curves downwardly because its growth is inhibited by oxing on the lower end. Next topic is chemotrophism. Growth of pollen tube towards the ovule. That process is chemotrophism. Hydrotrophism. Hydro means water and trophism means movement. It means movement towards water. That process is known as hydrotrophism.